Hello kids, welcome back to your GK class. So kids, as you know, we have completed the previous chapter, and now before moving toward the next chapter, today I'll be showing you few of the worksheet. Today we will solve few of the worksheet based on the very general question. बहुत ही जनरल से क्वेश्चन हैं इस वर्कशीट में। इस वर्कशीट को हम आज करेंगे। एंड आफ्टर डूइंग दिस वर्कशीट व्हाट वी विल डू, आफ्टर डूइंग दिस वर्कशीट मैम क्या करवाएंगे आपसे, फिर हम अपनी बुक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, ये वर्कशीट हमारे सामने है। इसके बाद 2 मोर वर्कशीट्स वी विल सॉल्व। तो मैम के साथ साथ सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे और मैम को आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी इजी वर्कशीट। यहाँ पे कई सारी स्पेलिंग है, कुछ चीज़ें एनिमल्स के बारे में या जनरल चीज़ों के बारे में मैंने आपसे अपनी हमारी ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या रहें, ईजी रहें। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़, नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, लेट मी टेक द ब्रश, let me select the color. Which color should I select now? I should go for pink one. Okay, now read the first question. What is the first question here? The first question here is, fill in the blank with the help of given word. Fill in the blank with the help of given word. What you have to do? You have to fill in the blanks. You have to fill in the blanks. Okay, now the first question here is rabbits. Okay, first of all let me read the question again. Fill in the blank with the help of given words. Carrots, tiger, den, shed, leaves. अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने इसे टाइगर नहीं पढ़ा, आपने इसे टिगर पढ़ा। I will explain it to you later why I have read that word as tiger, not as tiger. Now, carrot, den, tiger, shed, leaves. Now, I am going to read the first question. The first question here is, the very first question that we are having here is, rabbits like to eat. Rabbit likes to eat. Rabbit like to eat what? Rabbit like to eat leaves, or is he like to eat carrot? So the right answer for this question is carrot. Rabbit like to eat carrots. Rabbit likes to eat carrots. Now the next one is giraffe. See the spelling of giraffe? Giraffe. Giraffe. मैम के साथ बोलो, giraffe. Look at the spelling again. Giraffe. Giraffe. Like to eat. Giraffe like to eat. What does giraffe like to eat? अभी कैरेट तो किसने खा लिया? कैरेट तो खा लिया रैबिट ने कैरेट खा लिया। तो जिराफ क्या खाएगा? जिराफ खाएगा लीव्स। जिराफ क्या खाएगा? जिराफ खाएगा लीव्स। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, cows are captain. Cows are captain. Cows are captain. So cow lives in den or shed. काऊ को कहाँ रखा जाता है, den में या shed में? Answer me. Cow lives where? Whether cow lives in den or in shed? Cow lives in shed or in den? Answer करो. काऊ किधर रहती है, डेन में या शेड में?
So the right answer is cow lives in shed. Cow lives in shed. Cow lives in shed. Next, a lion lives in a. अभी लायन की बात हो रही है, काऊ की बात हो गई, जिराफ की बात हो गई, रैबिट की बात होगी, अभी लायन की बात हो रही है। अभी कोई बच्चा पूछेगा मैम इसे लिखना है, नहीं लिखना नहीं है, सिर्फ मैम की बात सुननी है, स्क्रीन पे देखना है। नाउ नेक्स्ट इज लायन। लायन लिव्स इन अ डेन। डेन क्या होती है? डेन ऐसी एक गुफा होती है, पुरानी कहानियों में तुमने सुना होगा। डेन क्या होती है बेटा? गुफा होती है। इसके अंदर कौन रहता है? इसके अंदर रहता है हमारा लायन। सो लायन लिव्स इन डेन। लायन लिव्स इन डेन। नेक्स्ट इज डैश इज अ कॉमिक कैरेक्टर. Now the word that left behind is a comic character, that is Tigger. What happened na, earlier there was a cartoon. I don't know whether that cartoon is still air on television or not, but that cartoon is Pooh Bear. Earlier there was a cartoon named Pooh Bear, and in this कार्टून पू बियर में एक कैरेक्टर था। पू जो बियर था उसका फ्रेंड था टिगर, उसका एक और फ्रेंड था वो था पिगलेट। ठीक है, तो ये क्या है? टिगर। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर ऑफ दिस फॉर दिस क्वेश्चन इज टिगर। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टिगर। ओके, नाउ लेट अस डू द रिवीजन। रीड करो इसको, मैम के साथ साथ आप भी रीड करो इसको। रैबिट्स लाइक टू ईट कैरेट, जिराफ लाइक्स टू ईट लीव्स, cows are kept in a shed. Cows are kept in a shed. A lion lives in a den. A lion lives in a den. Tigger is a comic character. और किस कार्टून में आता था? पू बियर। पू बियर में आता था। कौन आता था? टिगर। ओके क्लास, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला मैं हटा रही हूँ। अभी हम कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हियर। व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमने क्या करना है? राइट गुड और बैड। हियर some of the sentences has been given, and you have to tell me whether doing that is a good activity or a bad activity. Whether doing that is what? Is a good activity or a bad activity. So the lines here are right, good or bad. Write on wall. Now tell me whether we should write on wall or not. Should we write on wall? क्या हमें दीवारों पर लिखना चाहिए? Should we write on wall? Well, no. We should never write on wall. Wall क्या हो जाती हैं? उससे गंदी हो जाती हैं. So is it a good activity or a bad one? Well, it is a bad activity. So we will write here bad. Next is sit too close to TV. Sit too close to TV. TV के बहुत करीब बैठना. Sit too close to TV. TV के बहुत करीब बैठना. Is it a good activity or a bad one? Is it a good activity or a bad one? Sit too close to a TV. Sit too close to TV is a bad activity. है ना, TV के बहुत, टेलीविज़न हमें बहुत पास से क्या नहीं करना चाहिए? नहीं देखना चाहिए. Why? क्योंकि उससे हमारी आइज़ क्या हो सकती है? ख़राब हो सकती है ना. तो वी शुड नॉट
वी शुड नॉट सिट टू क्लोज टू द टीवी, वी शुड नॉट वॉच टीवी टू क्लोजली, ठीक है, क्लोजली नहीं देखना चाहिए टीवी हमें. ओके, सो इज इट क्लियर? कैन वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेंटेंस? Okay, let us move toward the next sentence here. The next sentence here is take bath daily. Take bath daily. Should we bath daily or once in a week? क्या डेली डेली नहाना चाहिए या कभी कभी नहाना चाहिए? टेल मी. शुड वी बाथ डेली और वी शुड बाथ वंस इन अ ब्लू मून? वी शुड बाथ डेली, है ना. डेली नहाने से क्या होता है, हम क्लीन रहते हैं, डिजीजेस नहीं आते, जर्म्स नहीं हो पाते, हमारे बॉडी को टच नहीं कर पाते. सो टेक अ बाथ डेली इज़ अ गुड एक्टिविटी, है ना. इज इट इज़ अ गुड एक्टिविटी. लीव द टैप रनिंग. शुड वी लीव द टैप रनिंग? टैप को रनिंग हम छोड़ सकते हैं. शुड वी और शुड वी नॉट लीव द टैप रनिंग? Now tell me, should we leave the tap running or should we not leave the tap running? टैप को ओपन करके छोड़ा जा सकता है या टैप को क्लोज करना इज इम्पॉर्टेंट? नो, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, है ना. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. वाटर इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स, सो वी शुड नेवर लीव टैप ओपन. वी शुड नेवर लीव टैप ओपन. So it is a bad activity, isn't it? It is a bad activity. Now the next one is brushing teeth. Now tell me, brushing teeth is a good activity or a bad one? Yes, tell me, brushing teeth is a good activity or a bad activity? Well, brushing teeth is a good activity. We should brush our teeth twice a day, है ना. So it is what? It is a good activity. Now I am going to repeat these sentences once again. Writing on the wall, bad. Sit too close to television, bad. Take bath daily, a good activity. Leave the tap running, bad activity. Brushing teeth, good activity. Okay guys, now ma'am is moving toward the next worksheet. Very well done, you have performed a fantastic job. Okay, now ma'am is moving toward the next activity. This question is, a crow can fly. Crow is a bird ना. Crow क्या है, एक bird होता है ना. और crow क्या कर सकता है, fly कर सकता है. Horse और fish fly नहीं कर सकते. Horse land पे दौड़ता है, fish water में swim करती है, तो ये दोनों तो fly नहीं कर सकते. क्या बचा हमारे पास crow. तो crow क्या करेगा, fly करेगा. It is a fruit. Now ma'am is moving toward the next question. Next question is, it is a fruit. Now you have to answer which of the following is a fruit. अभी आपने बताना है that which of the following is a fruit. Fruit कौन सा है भाई, रीड करो. which of the following is fruit. fruit क्या है? So
जैकफ्रूट इज़ अ फ्रूट, राइस इज़ अ फ्रूट एंड व्हीट इज़ अ फ्रूट। अभी मेरे को पता है ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्या आएगी, मैम राइस और व्हीट तो हमें पता है बट जैकफ्रूट क्या होता है, व्हाट इज़ अ जैकफ्रूट? हु विल आंसर? जैकफ्रूट देखा है, जैकफ्रूट क्या होता है? व्हाट डू वी कॉल जैकफ्रूट इन हिंदी? कटहल, है ना, कटहल, वी कॉल इट कटहल। आपके घर में कटहल की सब्जी बनती होगी। तो जैकफ्रूट इज व्हाट? जैकफ्रूट इज अ fruit. Jackfruit is a fruit. Next is dash is found in fairyland. Now read it again. Dash is found in fairyland. Dash is found in fairyland. Fairyland में क्या मिलता है? Fairyland में स्पाइडरमैन होता है, प्रिंसेस होती हैं या डॉक्टर्स होते हैं? क्या मिलता है फेरीलैंड में? स्पाइडरमैन रहेगा फेरीलैंड में? नहीं। प्रिंसेस रहेंगी फेरीलैंड में या डॉक्टर्स रहेंगे फेरीलैंड में? सो फेरीलैंड में रहेंगी प्रिंसेस, डॉक्टर नहीं रहेंगे फेरीलैंड में, ना ही स्पाइडरमैन। सो फेरीलैंड में रहेंगी प्रिंसेस। नाउ I'm again going to read the statement. मैं फिर से रीड करने जा रही हूँ. It can fly. So fish, horse or crow. Which of the following can fly? A crow can fly. Next is it is a fruit. Jackfruit is a fruit. Rice is a fruit. Wheat is a fruit. Well, jackfruit is a fruit. Next is dash is found in fairyland. Dash is found in fairyland. Spider-Man, princess or doctor? Well, princesses are found in fairyland. Okay guys, now moving toward question number 2. Let us do question number 2. Question number 2. Question number 2 is fill in the blanks. Question number 2 is what? Fill in the blank. What you have to do? What you have to fill in the blanks? Let's read. Wash, sleeping beauty, leg, lion, peacock. Wash, sleeping beauty, leg, lion, peacock. The question is, the very first question is, first of all you read all the question and try to solve this worksheet yourself, then ma'am will be telling you the answer. Okay, ma'am will be telling you the answer. First of all you read the story. Wash, sleeping beauty, leg, lion, peacock. The first is dash is our national bird. So you have to answer which of the following is our national bird. Wash, sleeping beauty, leg, lion, peacock. So our national bird is peacock, है ना? Peacock is what? Peacock is our national bird. Peacock is our national bird. Isn't it? Yes. Next is I am a cub. I grow into a. I am a cub. मैं एक cub हूँ. I will grow into a what? Cub will grow into what? Cub will grow into a lion. Cub will grow into a lion. लॉयन के बेबी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल लॉयन का बेबी एज कब. लॉयन के बेबी को हम क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल लॉयन का बेबी एज अ कब. नेक्स्ट इज यू वुड डैश योर हैंड बिफोर ईटिंग. अभी खाने के पहले क्या करना चाहिए अपने हमें? सो वी शुड व्हाट वी शुड डू बिफोर ईटिंग? वी शुड वॉश आवर हैंड. वी शुड वॉश आवर हैंड. We should wash our hand before eating. Yes, we should wash our hand. Now, dash of a
टेबल, टेबल का क्या होगा? टेबल का स्लीपिंग ब्यूटी होगा या लेग होगा? यही दोनों तो बचे ना हमारे पास, स्लीपिंग ब्यूटी और लेग बचे। नाउ टेल मी, टेबल का क्या होगा? स्लीपिंग ब्यूटी टेबल का होगा या लेग होगा? बताओ मुझे। टेबल के पास क्या होता है? टेबल के पास स्लीपिंग ब्यूटी होता है या लेग होता है? तो टेबल के पास होता है लेग। ओके, टेबल के पास क्या होता है? लेग होता है। नाउ डैश इज अ फेमस स्टोरी। डैश इज व्हाट? डैश इज अ फेमस स्टोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस स्टोरी? So the famous story is Sleeping Beauty is what? Sleeping Beauty is a famous story. Sleeping Beauty is what? Sleeping Beauty is a famous story. ठीक है, peacock, lion, wash, like चलो let us revise. Peacock is our national bird. I'm a cub, I grow into a lion. You would wash your hand before eating. Leg of a table. Sleeping Beauty is a famous story. Okay, Sleeping Beauty is what? Sleeping Beauty is a famous story. ठीक है, so here we have filled these words in the given sentences. ठीक है, these type of question I can ask in orals also, है ना? These type of question मैं आपके orals में पूछ सकती हूँ आपसे. So be ready and I hope you all are watching the video, है ना? Watch the video because it takes a very hard work for us, the teacher, to prepare this video for you guys. Okay class? Okay. Okay guys. Now after finishing the two worksheets, we are here to do a MCQ question. अभी हम क्या करेंगे? MCQ question. कुछ MCQ questions हम solve करेंगे, ठीक है? So let us start. Now the question is, first question, which of the following is not a national festival? Which of the following is not a national festival? कौन सा? नीचे दिए गए देखो 4 फेस्टिवल्स के नाम है, इनमें से दिया गया क्या एक नेशनल फेस्टिवल नहीं है? कौन सा एक नेशनल फेस्टिवल नहीं है? ओके नेशनल फेस्टिवल की बात हो रही है, ध्यान देना, सिर्फ फेस्टिवल की बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल की बात कर रहे हैं ये. दे आर टॉकिंग अबाउट नेशनल फेस्टिवल. सो द फर्स्ट इज गांधी जयंती, second is Deepavali, Republic Day or Independence Day. So let me inform you, let me tell you a thing that national festivals are 3 in number. National festival are 3 in number. Gandhi Jayanti, Republic Day and Independence Day. These 3 are national festival. So which is odd one out here? Deepavali. Deepavali is not a national festival. दीपावली क्या है? दीपावली एक नेशनल फेस्टिवल नहीं है, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग अहेड. विच फेस्टिवल ब्रिंग्स गिफ्ट एंड सेंटा क्लॉज? कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिस दिन हमें गिफ्ट्स मिलते हैं और सेंटा आता है? टेल मी विच फेस्टिवल ब्रिंग्स गिफ्ट एंड सेंटा क्लॉज? सो इज इट होली? Is it Christmas, गांधी जयंती और भाई दूज? Tell me which festival brings gift and Santa Claus? A very easy question. चलो tell me. होली. होली पे क्या हमें गिफ्ट और सेंटा क्लॉज आते हैं हमसे मिलने? नन्ना, होली पे तो ऐसा कुछ नहीं होता. Is it गांधी जयंती? क्या गांधी जयंती पे ऐसा होता है? नन्ना, गांधी जयंती पे भी नहीं होता, क्रिसमस पे भी नहीं होता. एंड भाई दूज. तो होली, क्रिसमस, गांधी जयंती, भाई दूज, ठीक है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी
द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी क्रिसमस. ठीक है, द राइट आंसर फॉर दिस विल बी क्रिसमस. Now the next question. Now moving toward the next question. Now the next question here is, we see parade on our television on. We see parade on our television on. किस दिन हमें परेड देखने को मिलती है? कौन सा दिन होता है जिस दिन हम क्या देखते हैं? टेलीविज़न पे क्या देखते हैं? वी सी परेड. किस दिन हमें टेलीविज़न पे परेड देखने को मिलती है? इज़ इट 26 जनवरी? इट इज़ 15 अगस्त? इज़ इट 14 नवंबर? और इज़ इट 2 दिसंबर? टेल मी, कौन सा दिन होता है जिस दिन हमें परेड देखने को मिलती है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 नवंबर और 2 दिसंबर. नाउ टेल मी द आंसर. On, we see it on 26 January, 14 November, 15 August और 2 December. So we see it on 26 January. 26 January is the day which we celebrate as Republic Day. ठीक है, we celebrate 26 January as Republic Day. Now next is, who is also known as Bapu? Who is also known as Bapu? Now tell me, who is known as Bapu? Is it Sardar Patel? Is it Mother Teresa, Jawaharlal Nehru or Mahatma Gandhi? Who is known as Bapu? Tell me. Who is known as Bapu? बापू कौन कहलाए? Tell me. ये तो पता होगा सभी बेबीज़ को कि बापू किसे कहते थे. सरदार पटेल को हम क्या कहते हैं? What do we call सरदार पटेल? Do we call him बापू? No, we call him. सरदार पटेल को हम क्या कहते हैं? डू वी कॉल हिम बापू? नो, वी कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया. वी कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू. वी कॉल हिम चाचा नेहरू. मदर टेरेसा, तो इनके तो नाम में ही इनका टाइटल है मदर टेरेसा, एंड रिसेंटली शी हैज़ बिकम सेंट ऑल्सो. नाउ द D1, महात्मा गांधी को लोग प्यार से क्या कहते हैं? बापू. सॉरी, महात्मा गांधी को लोग प्यार से क्या कहते हैं? पीपल कॉल हिम लविंगली बापू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर पार्ट? नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रीड द क्वेश्चन एंड आंसर. So you must be aware about the different computer parts. So here my question is, कंप्यूटर पार्ट तो देखा होगा, कई सारे कंप्यूटर पार्ट पे आप लोगों ने वर्क भी किया होगा. आपने आपके घर में कंप्यूटर होगा. अभी देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो सारे लगभग सारे बच्चों के पास लैपटॉप्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हैं, है ना. और आप लोगों ने कंप्यूटर, अभी कुछ बच्चों के घर में लैपटॉप्स होंगे, कुछ के घर में कंप्यूटर होगा, कुछ के घर में टैबलेट्स होंगे. Now the question is, which of the following is not a part of computer? Mouse, rat, monitor, CPU. Is it mouse? Is it rat? Is it monitor? Is it CPU? So mouse, rat, monitor, CPU. So the right answer is, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन पूछा नॉट अ कंप्यूटर पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर पार्ट? नॉट अ कंप्यूटर पार्ट की बात की गई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर पार्ट? रैट. रैट कोई कंप्यूटर पार्ट नहीं होता है. रैट क्या होता है? रैट कोई भी कंप्यूटर पार्ट रैट नहीं होता है. ओके, ओके. सो रैट कंप्यूटर का कोई भी पार्ट नहीं होता. हाँ, माउस होता है, दैट आई एग्री, क्योंकि उसका शेप माउस की तरह होता है, बट वी डोंट कॉल इट रैट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. रीड क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, अ कंप्यूटर कंपनी बाय द नेम ऑफ अ फ्रूट. सोचो सोचो, क्या आंसर होगा? अ कंप्यूटर कंपनी बाय द नेम ऑफ अ फ्रूट. कौन सी कंप्यूटर कंपनी है?
जिसमें क्या होता है, फ्रूट होता है, मतलब जिसका नाम क्या है, एक फ्रूट का नाम है. Is it apple? Is it grapes? Is it mango? Is it banana? Apple, grapes, mango, banana. What will be the answer? Apple, grapes, mango, banana. Answer क्या होंगे इसके? Apple, grapes, mango, banana. So the right answer for this question is apple. Apple एक कंपनी है ना. एप्पल के फ़ोन, एप्पल के आईफोन्स बहुत फेमस हैं, उनके टैब्स और कंप्यूटर भी बहुत फेमस हैं. सो एंड ये ज़्यादातर क्यों जाने जाते हैं, बिकॉज दे आर वॉट, एप्पल और एंड्रॉयड में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना. हम जो जनरली फ़ोन यूज़ करते हैं दैट इज़ एंड्रॉयड, और एप्पल के फ़ोन बहुत क्या होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. एप्पल्स के फ़ोन they are what, they are very expensive. But so answer of our question is a computer company by the name of a fruit is apple. Okay, now read the next question. Next question is Guru Purab is celebrated by. Guru Purab is celebrated by, is it celebrated by Muslim or Sikhs or Hindu or Christian? Guru Purab is celebrated by, is it celebrated by Muslim, Sikh, Hindu or Christian? Tell me, who celebrate Guru Purab? Is it celebrated by Muslim, Sikh, Hindu or Christian? So Muslims celebrate Eid, Hindus celebrate Holi, Deepavali, and Christians celebrate Easter, and Christians celebrate Christmas, and Sikh, they do celebrate Guru Purab. But we live in our country is India, and in India we all celebrate all the festival with utmost enthusiasm. Okay, enthusiasm के साथ we celebrate the festival. Now the next question in this regard is, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा इसके बारे में, a place which do is not near to your home. अब नीचे दिए गए प्लेसेस में से कौन सा प्लेस है जो कि हमारे घर के पास नहीं होता है? Is it park? Is it grocery? Is it hospital? और is it airport? पार्क, देखो ग्रॉसरी स्टोर तो सबके घर के पास होता है, वहाँ से जाके हम अपने घर का सामान खरीद के लाते हैं, तो ग्रॉसरी स्टोर तो सबके घर के पास होता ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ पार्क. तो भाई पार्क भी घरों के पास होता है, हॉस्पिटल भी होता है. एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट क्या होता है, वो घर के पास नहीं होता है ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which helper do you see in the school? Which helper do you see in the school? Is it driver, postman, tailor or plumber? Which helper do you see in school? Is it driver, tailor, postman and plumber? So स्कूल में हमारे पास कौन होता, प्लम्बर नहीं होता, टेलर नहीं होता, पोस्टमैन नहीं. हमारे स्कूल में बस ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं. हमारे स्कूल में कौन क्या अवेलेबल होते हैं, हमारे स्कूल में बस ड्राइवर्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं. सो किड्स, आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने 3 वर्कशीट क्या की, सॉल्व की. अभी अगली क्लास में भी हम ऐसे ही कुछ जीके की अच्छी सी चीज़ें वी विल कीप ऑन रीडिंग. ओके, सो टिल द टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.